in the last class when we have completed the topic of cookies and their types. So that was the last subtopic of 5.1, Internet and World Wide Web. Let me fix the settings so that the students coming, they might enter directly. Give me a second. Okay, beta. So in the last few classes, we were doing 5.1. We are done with the basic concept of internet and world wide web. We are done with the structure of URL. And I have told you how different questions are coming can come in the exams, like what is the structure of URL, what labeling we can do, like for example, what are different segments and portions of URL, and we have to label them. And sometimes they can mention their labels, and you have to give examples for each part. Then we have seen okay, what is the difference between two types of protocols. One was HTTP and HTTPS, right? So HTTP and HTTPS, they are different in a way. Like HTTPS is a more secure and the recent version of internet protocols, hypertext transfer protocol secure. We are done with that as well. And then we have seen the second last topic was how a web browser accesses any website server, and how the transmission of data takes place between the website browser between the browser and the website server. And the last topic was cookies and their types. Okay, now we are starting the last topic of this term, which is network hardware 3.4. So this is the last topic of this term, network hardware. And up till here your syllabus is coming in the midterm exam. Okay, so if we talk about this topic, let me give you some little bit of introduction regarding this topic. Hardware means, and whenever we say hardware, so hardware are those components which are physical in nature, which are tangible in nature. For example, the microphone, keyboard, printer, scanner, gaming controller, barcode reader, these all devices are physical in nature. They are tangible, they have some physical existence, and we can physically touch them and feel them. So we can call them as hardware. By the way, another name used for this term is peripheral as well. So hardwares are the physical and the tangible components, whether they serve for any sort of task. For example, keyboard is used for the purpose of input devices, but since it is tangible in nature, so we can call it as hardware. Printer printer serves to give the output in the form of a hard copy document, but since it is physical in nature, since it is tangible in nature, that is why it is also known as hardware. Hard drive of your system, of your piece printer, or your computer or laptop or ssd, they serve as memory and storage device by their job, by their type, but since they are also tangible, they will also be called as hardware. So it means if the name of the main topic is network hardware, so it means in this topic we will be discussing some physical components, tangible components. And since the word network is attached with hardware, it means we will be discussing the devices, we will be discussing the terms, the terminologies which are attached or associated with the network, with the internet. Okay, all clear up till here? If you have any questions, I am keep checking the comment section, so please do write over there. If you have any concerns, any query, anything you want to ask, you can keep putting your questions, and meanwhile during the class, in between the class, I will keep answering your questions. And wherever I feel I need to turn on your mics and I need to take your verbal feedback from you guys, I will switch on your mic as well. Okay, so let's start the very first subtopic of network hardware, which is network interface card. What is this? NIC. Basically, this is the hardware component which is inside all of our devices. For example, whether we are using mobile phone, whether we are using PC, whether we are using laptop, whether we are using Chromebook. So this is the device, this is the component which is actually responsible for establishing the connectivity between our device and the internet connection. It means if this device is there, and if this device is working properly, then there is no reason the connectivity cannot be established between our device and the internet. Okay, so a network interface card, NIC, is needed
device to connect to networks such as internet. So whenever we are connected with internet, whether it is data, whether it is Wi-Fi, it means that there is one hardware component, there is one network hardware, it present always all the time inside the computer, which is inside the laptop, which is network interface card. Okay, it is usually part of the device hardware and it contains the media access control, and this address is generated at the manufacturing stage. Later on in today's class, we will be discussing more about what is MAC address. But right now, they are telling us that whenever in all sort of devices, since network interface card is there and its core job, its core responsibility to establish to connect the device with the internet. So for every network interface card, there will be one MAC address associated with that network interface card. Okay, so whichever device we are using, there is one thing that is for sure, it must contain, there will be a network interface card inside that device. And the second thing which is must for every network interface card, that it will be associated, it will be assigned a MAC address. And who is assigning this MAC address? The company, the maker who is actually manufacturing this network interface card, that is giving it a media access control address that we call MAC address. Okay, later on in today's class, we will be discussing the features, the properties, and the types of MAC addresses. Okay, आगे चलते हैं. Then wireless network interface cards or controllers are the same as network interface card, and their job is also same. Like we are saying that network interface card, they are normally installed inside our system, inside our PC, with some sort of small wires. But in case if that network interface card is not working properly, then there is one alternate is also available. I'm showing you the picture of that component. For example, if your network interface card become out of order, then you can use wireless internet network interface card in the form of dongle as well. I'm showing you the picture of that as well. You people might have seen wireless internet dongle. For example, if the modem, if the network interface card of our system stops working, it becomes out of order. So one option can be to replace the network interface card, and the second option is to have the network interface card in the wireless form with uh, USB port, and you can simply connect this network interface card in the wireless form with any of your PC, with any of your laptop, and that will be doing the same job that the network interface card with the wired form was doing. It will be establishing the connectivity of your device with the internet. Okay, so we are clear कि भाई network interface card which is mounted inside the system, that is there with the help of some wires, but wireless network interface cards or controllers, they are also available. However, whenever we say anything, for anything we say that wireless option is available, it means that some sort of antenna will also be involved, some sort of signals, involvement of signals will also be there. So this is same is the case for if we are using wireless network interface card, that we call in short form as WNICs. So they will be dealing in signals and involving antenna as well. So I am stopping over here, and do tell me in the comment section, okay, if you have any confusion in the network interface card and MAC address. Right now I have just told you what is network interface card, where it is located inside the computer, what is its core job, and which is what is the scenario if our network interface card which is mounted inside the system, if it becomes order, then how can we use the alternate option, which sort of address is assigned or allocated to the network interface card, and who is the assigning authority that assigning the MAC address to any particular network interface card. ठीक है, if you have any questions, do write it in the chat option.
Ji, Humaira is asking, sir, can you repeat network interface card alternatives? Okay, by the way, beta, wireless network interface is not the alternative. This is just another type of it. Like if we say that one of the type of communication is telephone, and the mobile phone is just another type of it in which we are using the wireless signals. Okay? In the same way, wireless network interface card is just an alternative of the mounted or placed network interface card which are inside our systems. Achha, Ahmed, we will look into this matter because we are recording this class. So, if anyone, in case someone is doing anything wrong, the evidence will be there. Recording is being doing and recording is going on. So, don't worry. You are here, and if anyone will be doing anything wrong, so we will be having evidence of that, and we will be looking into it later on. ठीक है? अच्छा जी, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे अब हम चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं further about media access control, MAC address. Right now we have discussed so far up till now that MAC address is assigned to all the network interface cards. Where are those network interface cards? They are always there inside all the devices, be it a laptop, be it a Chromebook, be it a PC, or even mobile phone. Network interface cards are always there, and what is their core job? To maintain and establish the connectivity of the device with the internet. And whenever network interface card is there, associated MAC address will also be there. So now let's have a look at the basic structure or layout of any MAC address, how it will be looking like, and what is the meaning of different sections of it. Like it will be always in the form of 12 hexadecimal digits or characters, or you can say it will be in the form of 6 pairs, right? 6 pairs may say out of those 6 pairs, the very first 3 pairs will always be representing the code of the manufacturer, the maker. For example, if we look into the MAC addresses of, let's say, a brand of Intel, so the MAC addresses of Intel's network interface card, they will be always be starting with a same 3 pairs in the starting place to identify, to have a better recognition, like this network interface card is being made from which company, which maker. Okay, in the same way, if the maker of the network interface card is, let's say, Acer or Apple, so it means that all the network interface cards made by the Apple, their first 3 pairs will be same, just to have a better understanding of which network interface card is being made or manufactured by which company. And then the later 3 pairs, wait a second beta, wait a second. Okay, so we were discussing the structure of network MAC address. The first 3 pairs are the manufacturer's code, and the last 3 pairs will be unique serial number of that particular device only. For example, let's say if you and me, and let's say all of us are using the network interface card of the same maker, it means that the first 3 pairs of all the network interface cards MAC addresses for all of us will be same. Just imagine, just assume that we are using the same maker's NIC, network interface card, but the last 3 pairs will be different for all of us, because the last 3 pairs are always the unique serial number of that particular device. For example, if anyone asks us, let's say, what is the standard pattern or format of mobile numbers, cellular mobile numbers in Pakistan, so we can tell a pattern that the first 2 digits will always be the country code, let's say 92. Then comes the 4 digits, they will be they will be separate codes for each network provider, like different for Uphone, different for Mobilink, and etc. And the last 7 digits, they will be different and unique for each user, for each customer of them. Okay, so this is the overall layout or structure or format of network interface card. Then we have to see what are the different types of MAC addresses.
MAC addresses can be of two types. Let me give you one summary of it. Like for example, we have concluded, we have understood that okay, the maker, the manufacturer of the network interface card is the authority, is the assigning body for MAC addresses to all the network interface cards. And in most of the cases, remember, you can write it as your lecture point as well, that in most of the cases it is not possible and it is not recommended to change the MAC address of your network interface card, because if you will be changing the MAC address of your network interface card, then your system might face different problems, because MAC address for all the devices is unique. They are unique throughout the world. Even how many devices are being made, their MAC addresses will be unique and they are different. But if we have to change them because of some genuine reasons, and by the way, the paragraph which is coming after two paragraphs, there are three genuine reasons or scenarios are mentioned inside your textbook, which actually tells us that which what will be the genuine scenarios, or what will be the situations in which there might be the need of changing the MAC address. So the MAC address provided by the manufacturer, that will be known as UAA, universally administered MAC address, that is being assigned for the first time from the maker, from the company who is making the network interface card. And if we have to change because of any certain specific scenario, because of any some genuine reason, then we have to modify it, we have to change it using locally administered MAC address, right? So let's have a look of those scenarios, those situations in which there might be the possibilities कि हमें MAC address कौन सा वाला, the one which is called universally administered MAC address, वो हमें change करना पड़ जाए. What can be the reasons? For example, the scenario number one can be certain software used on mainframe systems. Now what are mainframe systems? Mainframe systems are actually a type of computer. For example, they are used in weather forecasting stations, they are used in space exploration centers, and they are very huge in size. They are like the size of cupboard almirah, right? So in the scenario of mainframe systems, sometimes this happens, this scenario exists, that they are, they have the requirement that all the devices fall into some strict format. Because of this, it may be necessary to change the MAC address of some devices to ensure to ensure they follow the correct format. It means this is the scenario which is not common, this is not usual situation, but this is a possibility, there is a possibility that when in the scenario of mainframe systems, when some certain or specific format of MAC address is required, then we might be, we might be thinking okay, yes, we can change the universally administered MAC address into locally administered MAC address, because our requirement is like we have to change it and we have to modify it, we have to make it as per specific format. Okay, let me check the chat if you might have any questions. By the way, beta, meanwhile, if you keep flooding the chat with irrelevant messages and chat, by the way, it will go against you as well, because everything is being recorded. And by the way, I will switch off the chat for now, because whenever I will be giving you the chance to ask questions, I will switch it on back and then you will be asking the questions. Okay. So, any questions up so far? Anything you want to ask up till now? You can raise your hand as well. Okay. So we were discussing about what are the different scenarios where we need to change the MAC address assigned or the given by the manufacturer. The second scenario may be like some restrictions are, let's say, being applied on some routers. Maybe some firewalls are applied to ensure some restrictions, and you need to, and you are interested to bypass those restrictions, you are interested to bypass those filters, then you might be, you might think of to change your universally administered MAC address to locally administered MAC address, because any filter, any firewall, they might be filtering out, they might be
checking, they might be identifying and blocking certain specific format of MAC address, and if you change it to some special one, so then you might get a chance to bypass those restrictions applied by any filter, applied by any firewall. So this can be the second reason, this can be the second scenario where you might think to change your MAC address because of the reason कि आप किसी certain क्राइटेरिया को बाईपास करना चाह रहे हैं, कोई फिल्टर लगा हुआ है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप उस रिस्ट्रिक्शन को, उस फिल्टर को, या उस आप कह लें कि फायरवॉल को बाईपास करना चाह रहे हो, then you might change your MAC address from universally administered to locally administered. Okay, let me switch on the option of chat, and you might those of you who are raising hands, please start putting your questions, start posting your questions in the chat option, and I will be answering them. Okay, but please avoid irrelevant messages, because if you are flooding it with irrelevant messages, so the messages which are relevant and they are related to the topic, they are beyond. अच्छा सर, चेंजिंग ऑफ मैक एड्रेस यूजिंग LLA वापस समझा दें, मेरा ने कहा अच्छा एक सेकंड रुकिएगा जरा. And please, whenever you are joining any of your online class, please make sure that you join from your Beaconite ID. Otherwise the teachers will be removing them. एक सेकंड रुकिएगा. जैसे मैंने अभी एक को रिमूव कर दिया यहाँ पे, जो अपनी किसी और ही आईडी से आए हुए थे और अजीब अजीब से मैसेजेस कर रहे थे. जी बेटा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हुमैरा ने आई थिंक पूछा था. यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड को मैं एक दफा रिपीट कर दूं. यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस इज द वन assigned by the manufacturer, assigned by the maker, and it is not recommended to change that MAC address, which is known as universally administered MAC address, assigned or given by the maker of that network interface card. But there might be some special scenarios in which you think of changing that by locally administered MAC address. और वो कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए. अच्छा जी, माइक भी बेटा अभी खोल दूंगा, परेशान ना हो ज्यादा. आगे चलते हैं. अब हम तीसरा सिनेरियो देखते हैं कि विच इज द थर्ड सिनेरियो इन विच वी कैन थिंक ऑफ चेंजिंग यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस इनटू locally administered MAC address. Third scenario is to get past certain types of network restrictions. It may be necessary to emulate unrestricted MAC addresses. Hence it may require the MAC address to be changed on certain devices connected to the network. This is somewhat related to the second one, कि certain restrictions लगी हों अगर किसी नेटवर्क पर, और वो एक certain criteria ही को चेक करके फिल्टर आउट कर रहे हों, तो उनको बाईपास करने के लिए भी हम इसको चेंज कर सकते हैं. किसको? यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस को इनटू locally administered MAC address. Now the next topic is very interesting, but you need to be very careful and you need to be very focused while I will be explaining the types of internet protocol address, IP address, or otherwise you will stay confused. अब जरा मेरे एक एक लफ्ज पे बेटा फोकस करिएगा, गौर करिएगा what I'm telling you during the explanation of IP एड्रेस एंड देयर टाइप्स. अच्छा, अब मैं आपसे कुछ ओवरव्यू थोड़ा सा पहले आपको दूंगा, थोड़ी सी बातें इसी टॉपिक से रिलेटेड जनरली करूंगा. बुक का अभी पढ़े, बुक का पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इतना. पहले आपको मैं जरा एक ओवरव्यू दे दूं. बेटा हमारे सिलेबस में मैक एड्रेस की जो टाइप्स हैं वो दो हैं ओनली. दे आर ओनली टू. यूएए यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस एंड लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस. ठीक है. अच्छा, अब आईपी एड्रेस क्या है देखें. अब जरा एड्रेसेस को समझें. हम में से कोई भी, whenever one of us is using their mobile phone or laptop or their you can say एक सेकंड मैं जरा सेटिंग दोबारा से चेंज करूं. एक मिनट मुझे दीजिएगा बेटा. ये क्यूबर गाय आ रहे हैं और पता नहीं किसके साइड से आ रहे हैं बेटा. अच्छा जी. देखिए, जब भी हम में से कोई भी क्या करता है कि अपने किसी भी मोबाइल फोन को किसी भी जगह पे बैठ के वाईफाई से कनेक्ट करता है, तो होता क्या है? बेसिकली होता ये है कि
हम किसी भी राउटर से कनेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो घर का राउटर हो या वो स्कूल का राउटर हो, ठीक है। अच्छा, उस राउटर से कनेक्ट करने पे हो ये जाता है कि आपके मोबाइल फोन को या लैपटॉप को या टैबलेट को आपने या क्रोम बुक को जिस भी राउटर से कनेक्ट किया वाईफाई लेने के लिए, दैट राउटर असाइंस योर डिवाइस अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, वेन एवर यू कनेक्ट द वाईफाई, let's say from the your home wi-fi, from your home router, or whether from the school's router और फ्रॉम सम कैफेज राउटर, सम रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, जिस किसी भी जगह के राउटर से आप जब कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को या अपनी किसी भी डिवाइस को, तो वो राउटर आपकी उस डिवाइस को क्या कर देता है, आपकी उस डिवाइस को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। अब जो आगे बात मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि क्या ये प्राइवेट आईपी एड्रेस यूनिक होता है या नहीं होता। बहुत गौर से एक एक लफ्ज को सुनना है। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो आपके मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, क्रोमबुक को किसने दिया था, जिस भी नेटवर्क में, प्राइवेट नेटवर्क में बैठकर आपने जिस राउटर से कनेक्ट किया था, उसने असाइन किया था एक प्राइवेट आईपी आपकी डिवाइस को। तो उसी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आपका आईपी यूनिक होगा। वेयर एज वैसा या वो सेम आईपी एड्रेस किसी और प्राइवेट नेटवर्क में एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी एग्जांपल यूं समझें कि आप में से या हम में से जिस किसी का जो भी नाम है, वो आमतौर पर हमारे अपने इमीडिएट फैमिली में, हमारे घर वालों में, हमारे सिबलिंग्स में, पेरेंट्स की ये कोशिश है या एक ट्रेंड होता है कि वो आमतौर पर नहीं सेम नाम रख रहे होते सिबलिंग्स का। ठीक है, वो सेम नाम नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम अगर हुमैरा है तो एक ही घर में सिबलिंग्स में से कोई और हुमैरा जो है वो नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन हुमैरा आप अपने फैमिली से, घर से बाहर निकले, आपको कजन्स में बहुत मिल जाएंगी, आपको फैमिली में बहुत मिल जाएंगे सेम नाम वाले, एंड इट इज फॉर एवरीवन। मेरा जो नाम है वो मेरे सिबलिंग्स में नहीं मिलेगा, वो प्राइवेट होगा, वो सॉरी वो यूनिक होगा मेरे अपनी इमेज में, बट that can exist in other families and other members of society as well। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुकें, ये जो आना जाने का सिलसिला लगा हुआ है ना, ये बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक सेकंड रुके जरा। वो ये कि मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि प्राइवेट आईपी हमारी हर डिवाइस को असाइन करता है कौन, राउटर। ठीक है, और वो प्राइवेट नेटवर्क का जब भी हम हिस्सा बनते हैं, हमारे हर डिवाइस को जो भी उस प्राइवेट नेटवर्क से ज्वाइन करे उसको प्राइवेट आईपी मिल सकता है। विद इन दैट प्राइवेट आईपी, दैट आईपी एड्रेस विल बी डेफिनेटली यूनिक, but other than that private network, that ip address might repeat or might can also exist somewhere in other private network as well। जैसे मैंने कि आप में से जो है वो आपका नाम आपके सिबलिंग में किसी और के पास वैसा सेम नाम नहीं होगा, लेकिन किसी और फैमिली में या किसी और घर में या किसी और मोहल्ले में वो नाम बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये तो हो गया प्राइवेट आईपी की बात। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज पब्लिक आईडी। पब्लिक आईपी क्या होता है? पब्लिक आईपी मींस आपका जो राउटर है, आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है, मेरे घर में एक राउटर है, स्कूल में एक राउटर है, एयरपोर्ट पे, हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट में, जहां हर हर जगह पे जो एक राउटर लगा हुआ है, उसको असाइन करता है कौन? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअली असाइंस public IP address to the router from which we are connecting and taking the private IP। ठीक है, और ये यूनिक होता है फॉर एवरी सिंगल राउटर। ठीक है, जो मेरे घर में राउटर लगा हुआ है उसको मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, मेरे आईएसपी ने, वेदर इट इज पीटीसीएल, बी इट स्टॉर्म फाइबर या जो भी उसका नाम है, तो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने मेरे राउटर को एक पब्लिक आईपी असाइन कर दी। ठीक है, अच्छा ये बाय द वे, ये किसी भी चीज को ट्रेस करने में, ट्रैक करने में, कोई अच्छी एक्टिविटी हुई, किसी ने मिस यूज किया, खुदा ना खास्ता किसी ने साइबर क्राइम कमिट कर दिया, तो ये मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस किस तरह से इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प करते हैं, दैट आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है इन दैट सिनेरियो। ठीक है, अच्छा तो अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चीजें बार बार सुनेंगे तो याद रह जाएंगी। चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और बहुत ज्यादा फोकस्ड करके सुनने वाली हैं। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया रिलेटेड टू आईपी एड्रेस, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका पूरा नाम है। ठीक है, और इंटरनेट पर क्योंकि डेटा की ट्रांसमिशन होनी होती है और एक
मिली सेकेंड में मिलियंस या बिलियंस ऑफ बाइट्स या गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स ऑफ डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है। तो जिस तरह रोड्स पे ट्रैफिक की मूवमेंट को सेफली इंश्योर करने के लिए हमने ट्रैफिक रूल्स या प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं टू इंश्योर द सेफ प्रोटोकॉल ऑफ द traffic and the people and the vehicles moving on the road. In the same way, since enormous amount of traffic, web traffic is actually moving and transferring or transmitting over the internet, तो वो ट्रांसमिशन भी सेफली एंड सिक्योरली हो जाए, सो उसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स बना लिए गए हैं जिनको इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं। क्योंकि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इसी वेब ट्रैफिक से गुजर रही हैं, हमारी प्राइवेट या हमारी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी इसी नेटवर्क वेब ट्रैफिक से गुजर रहे हैं, हमारी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स या वीडियोस भी इसी वेब ट्रैफिक से गुजर रही हैं। तो हमारी ट्रैफिक, जो भी हमारा डेटा है जो इस वेब ट्रैफिक से गुजर रहा है या हर किसी यूजर का, उसको सिक्योर बनाने के लिए, उसकी सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए और उसकी ना सिर्फ सिक्योर बल्कि एफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए देयर आर प्रोटोकॉल्स। तो अब उसमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा कि व्हेन एवर any of our device gets connected with any particular router in that private network, वो प्राइवेट नेटवर्क आपका घर का भी हो सकता है, घर का इंटरनेट है तो वो घर का प्राइवेट नेटवर्क है, कैफे के इंटरनेट आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के यूज कर रहे हैं तो वो वहां का एक प्राइवेट नेटवर्क कंसीडर होगा, आप स्कूल के इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो वो एक अलग सेपरेट प्राइवेट नेटवर्क कंसीडर होगा। सो इन विद इन एनी प्राइवेट नेटवर्क द राउटर assigns a private IP to any device connecting with that, ठीक है। एंड दिस प्राइवेट आईपी एड्रेस विल डेफिनेटली बी यूनिक बट विद इन दैट प्राइवेट नेटवर्क ओनली, ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस उस प्राइवेट आई नेटवर्क के अंदर तो यूनिक होगा बट उससे बाहर ये रिपीट हो सकता है, दूसरे प्राइवेट नेटवर्क्स में भी मौजूद हो सकता है। फिर हमने ये बात की कि पब्लिक आईपी क्या होता है, किसको असाइन किया जाता है, कौन असाइन करता है। सो पब्लिक आईपी जो है इट इज असाइंड टू द राउटर्स which exists in our houses, in our offices, in our cafes, in our restaurants, in our hospitals or airports or shopping centers। तो वहां पे लगे राउटर्स को असाइन करने वाली अथॉरिटी या बॉडी कौन है, वो असाइन किया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसको असाइन करता है। और पब्लिक आईपी जो है वो यूनिक होती है फॉर एवरी राउटर। अब मैं जरा आपको ये बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है टू इन्वेस्टिगेट इफ गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता अगर किसी ने कोई साइबर क्राइम कर दिया या किसी को बुली कर दिया ऑनलाइन या किसी के हरासमेंट हो गई और केस जो है वो चला गया साइबर सिक्योरिटी या यूं कह लें साइबर क्राइम वालों के पास, देन हाउ दे विल गेट टू रीच दैट पर्टिकुलर यूजर के जिसकी तरफ से ये क्राइम कमिट हुआ। अच्छा, अब मैक एड्रेस क्या करेगा अपना रोल प्ले और आईपी एड्रेस क्या करेगा। सबसे पहले द इन्वेस्टिगेटर्स विल स्टार्ट ट्रेसिंग द लीड फ्रॉम द पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस से उनको ये पता चलेगा ओके ये पब्लिक आईपी एड्रेस इस पर्टिकुलर जगह पे लगे हुए इस राउटर का है। और क्योंकि मैंने कहा कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस आर टोटली यूनिक, उन जैसा कोई और नहीं होता, तो जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस तक वो पहुंचेंगे वैसा कोई और नहीं होगा। इट मींस वो सही जगह पर पहुंच जाएंगे कि ओके इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में जो राउटर लगा हुआ है इससे जितने भी यूजर्स कनेक्ट हुए हैं उनमें से ही किसी ने किया है, अभी वो यहां तक पहुंचे। फिर उसके बाद आईपी एड्रेस से उनको मजीद ये पता चलेगा कि अच्छा इस राउटर ने जो जो यूनिक आईपी एड्रेसेस असाइन किए टू द डिवाइसेस विच कनेक्टेड विद दिस राउटर वो ये सारे हैं, ठीक है। और वो कौन सा वाला आईपी एड्रेस था जो कि जिसकी तरफ से जो है वो क्या किया गया, एक क्राइम कमिट हुआ, साइबर क्राइम। मजीद ये कि फर्दर उनके लिए आसानी कर देगा आपका मैक एड्रेस। मैक एड्रेस तो एग्जैक्टली आपकी डिवाइस तक या आप तक पहुंचा कर आएगा कि भाई फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर स्कूल की इस पर्टिकुलर ब्रांच में एक राउटर लगा था, यहां से वो चीज हुई। अच्छा, नहीं पता कि किस लैब से हुई और कौन से पीसी से हुई। अब प्राइवेट आईपी से अंदाजा हो गया कि अच्छा इस लैब नंबर दिस से में जो 14 पीसीज हैं इनमें से कोई है। अब उनमें से भी पर्टिकुलरली टू बी एग्जैक्ट कौन है वो मैक एड्रेस बताएगा। मैक एड्रेस को इसीलिए फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। वो बताएगा पर्टिकुलरली कि ये वाला जो है मोबाइल है, ये वाली डिवाइस है, ये लैपटॉप या पीसी या क्रोम बुक है जहां से गॉड फॉरबिड ये साइबर क्राइम कमिट हुआ। तो इस तरह से ये चीज इस सेंस में भी हेल्पफुल होती है।
अच्छा, अब आगे फिर हमें पढ़नी है। अगर यहाँ तक कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो अभी मैं आगे जाने से पहले आईपी की दो टाइप्स, आईपी एड्रेसेस की, IPv4 और IPv6 पे जाने से पहले मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। यू इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, डू राइट इट इन द चैट बॉक्स बेटा, बट प्लीज रेलेवेंट क्वेश्चंस ही पूछिएगा। जी, चैट ऑप्शन इज ओपन नाउ, यू मे आस्क। अहमद बेटा, हु इज आस्किंग फॉर योर मोबाइल नंबर? जी मुइज़ा, मुइज़ा, आप, you joined late. By the way, chat option is open. If you want to ask anything that we have discussed so far, you might ask. You may ask बेटा। जी आयाना, क्या बताऊं बेटा? पूछें, क्वेश्चन तो पूछें अपना। यू कैन कीप आस्किंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में कुछ समझ नहीं आया, मैक एड्रेस या उसके स्ट्रक्चर या उसके फॉर्मेट में कुछ समझ में नहीं आया, मैक एड्रेस की टाइप्स में कुछ समझ में नहीं आया, आईपी एड्रेस की दो टाइप्स हमने पढ़ी, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी, कौन किसको असाइन करता है, कौन यूनिक होता है इनमें से, कौन यूनिक नहीं होता, इसमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें बेटा चैट में लिख के। जी बेटा। अच्छा अयाना, बाय द वे आपका सिलेबस तो आई थिंक आप लोगों से शेयर हो चुका है ऑलरेडी। यू कैन लुक इनटू देयर एज वेल, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। अलबत्ता ये जो हमारी फर्स्ट टर्म चल रही है, ये इसका लास्ट टॉपिक है 3.4। ठीक है, इसी के अंदर हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये टॉपिक जा कहाँ तक रहा है, और इसमें हमारे सब टॉपिक्स अभी क्या क्या रहते हैं। IPv4 और IPv6 जो आईपी की टाइप्स हैं वो अभी हो जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ डायनेमिक एंड स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग का क्या फ़र्क होता है, ये भी हो जाएगा। आज तो नहीं, है नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद राउटर्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर देयर जॉब, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम यूँ समझ लें कि नेक्स्ट क्लास तक हमारा ये 3.4 भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट मीन्स आवर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड फॉर दिस टर्म वन, और उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। सही है। चलें बेटा, अब हम चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं भाई IPv4 में और IPv6 में। एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा बेटा।
जी बेटा, इससे पहले कि हम आगे चलें और नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंसेस ऑफ IPv4 एंड IPv6 देखें, डू ओपन योर कॉपीज एंड आई एम राइटिंग इन द चैट व्हाट यू आर सपोज टू राइट इन योर indexes and what you are supposed to write in the main pages of the topics that we have covered so far in today's class. So open up your copies and do write whichever headings, topics or pointers I am writing in the chat option. So this must be done in your copy right now. मैं chat में लिखना शुरू कर रहा हूँ, you start copying inside your notebooks. तो एक तो आप मेन हेडिंग जो लिखेंगे ऑन द न्यू पेज दैट इज 3.4 नेटवर्क हार्डवेयर एंड डू कॉपी इट इन योर इंडेक्स एज वेल. आगे फिर इसके बाद सब टॉपिक्स क्या क्या है मैं वो भी लिख रहा हूँ बेटा. जी बेटा, ये सारे हेडिंग्स या ये पॉइंटर्स जो हैं आप अपनी कॉपी में अभी सारे के सारे लिख लें. एंड वंस यू आर डन राइटिंग विद देम, सो डू राइट डन इन द chat box. Then I will start explaining the differences between IPv4 and IPv6.
Beta, you have 2 more minutes and consider this as your break in between the two lessons. Okay, so I will resume the class at 1:30. Right now it's 1:24. So you have 6 minutes. You can have water. You can, if you want to go to washroom, you can. So if you want to move a bit, आप कर लें और फिर we will resume the class at 1:30 inshallah. By the way, Huda beta, this is not PPT. This is just the soft copy of your textbook. ये आपकी टेक्स्ट बुक की ई बुक कह लो या सॉफ्ट कॉपी कह लो या पीडीएफ कह लो, ये वो है। ये कोई अलग से नोट्स नहीं है। अलबत्ता इससे मुझे याद ये आया कि मैंने कुकीज़ और टाइप्स ऑफ कुकीज़ एंड यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ कुकीज़ के ऊपर एक थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट बनाया है। तो वो मैंने 10H वालों के साथ शेयर किया था और ए वालों के साथ। सो दैट आई विल बी अपलोडिंग इंशाल्लाह रिलेटेड टू कुकीज़। वो आप ज़रा देख लीजिएगा।
चलें बेटा, लेट्स रिज्यूम विद द क्लास। और एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। और IPv4 IPv6 पे जाने से पहले लेट्स हैव अ recap of the differences between MAC address and IP address. Let's have a discussion about them as well. So here in this table they are telling some basic features and comparison between MAC address and IP address, right? So, MAC address identifies, number one, point number one, MAC address identifies the physical address of a device on the network, that I have just told you. That MAC addresses are also known as the physical addresses because they will specifically relate with one particular device only in the whole world, because all the MAC addresses, they are unique, right? They are unique and they are not repeated. So that is why, this is the reason they are also known as the physical address of the device, because if we start tracing any particular MAC address, so it will definitely lead us to that particular device, physically that particular device only. So that is why MAC address is also known as physical address. Okay, whereas IP address identifies the global address on the internet. IP address जो होता है वो एक ग्लोबल एड्रेस होता है कि हम जब इंटरनेट से कनेक्ट हुए, तो जिस भी प्राइवेट नेटवर्क का हम पार्ट थे, हमें हमारी डिवाइस को एक आईपी एड्रेस जो असाइन कर दिया गया, वो एक ग्लोबल एड्रेस है जो कहीं से भी ग्लोबली ट्रेस किया जा सकता है. Then the second point for MAC address is it is unique for the device on the network. ये मैंने आपको बताया. Whereas IP address may not necessarily be unique. और इसकी रीज़न क्या है हमने डिस्कस किया. Why it may not necessarily be unique, because if in case it is private IP, so in that particular private network, that IP address will be unique, but they it might repeat, it might exist in other private networks as well. ठीक है, जबकि इसकी एक टाइप है आईपी एड्रेस की, कौन सी वाली, आपका पब्लिक आईपी एड्रेस, जो हर राउटर के लिए यूनिक होता है. तो हमारा हम ये कह सकते हैं कि ये इन्होंने जो कहा कि मे नॉट नेसेसरीली बी यूनिक, बिकॉज आईपी एड्रेस हमेशा और हर केस में यूनिक नहीं होता. Point number three for MAC address, assigned by the manufacturer of the device, assigned by the manufacturer of the device and is part of NIC. एक मिनट जरा रुकिएगा. जी बेटा, सो हमने हमने ये बात डिस्कस कर ली कि हु असाइंस द मैक एड्रेस. ये मैन्युफैक्चरर या उसका जो मेकर होता है, दे आर द वन हु असाइंस द मैक एड्रेस टू एनी पर्टिकुलर डिवाइस. Dynamic IP addresses are assigned by ISP using DHCP. आगे हमारा एक टॉपिक आ रहा है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी. सो डायनेमिक और स्टैटिक आईपी में डिफरेंस क्या है, कौन किसको असाइन करता है, ये सारी डिटेल आगे आ रही है. सो डायनेमिक आईपी एड्रेसेस आर असाइंड बाय आईएसपी यूजिंग DHCP सिस्टम के थ्रू ईच टाइम द डिवाइस कनेक्ट्स टू द इंटरनेट. ठीक है. MAC addresses, they can be universal or local. It means in this point they are talking about their types. So there are two types of MAC addresses. One is universally administered MAC address, which we call in abbreviation as UAA, whereas the second type is locally administered MAC address, LAA. ठीक है. Then for IP address, dynamic IP addresses change every time a device connects to the internet. ठीक है, जब जब हमारी डिवाइस किसी भी जगह के इंटरनेट से कनेक्ट होगी, डिफरेंट आईपी एड्रेस विल बी गिवन टू अस, एंड सिंस इट इज कीप ऑन चेंजिंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायनेमिक आईपी एड्रेस, राइट. देन स्टैटिक आईपी एड्रेसेस डू नॉट चेंज. ठीक है. अब ये हम बाद में इस पे बात कर लेंगे कि कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर हमें स्टैटिक आईपी की ज़रूरत पड़ती है और उसकी वजह से क्या डिफरेंस आता है परफॉर्मेंस में या हमारे किसी पर्टिकुलर काम में. और बाय द वे ये फिर हमें अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ऑन पेमेंट सब्सक्राइब करवा कर स्पेशली लेना पड़ता है स्टैटिक आईपी. स्टैटिक आईपी मींस नॉन चेंजिंग आईपी, परमानेंट आईपी या फिक्स आईपी भी इसको हम कह सकते हैं. तो ये डायनामिक आईपी का ऑपोजिट है, बिकॉज डायनामिक आईपी को डायनामिक आईपी कहते ही क्यों है, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. अच्छा जी, मैक एड्रेस. व्हेन अ पैकेट ऑफ डेटा इज सेंट एंड रिसीव्ड,
The MAC address is used to identify the senders and recipients devices. एक डेटा पैकेट रिसीव हुआ या सेंड किया गया. अब मैक एड्रेस विल बी हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन of the sender because MAC address is the physical address and that will identify who is the sender, and same is the case for receiver. MAC address is the physical address and it will be actually helping out in identification of the recipient as well. receiver की भी identification में help करता है MAC address और sender की भी. IP addresses used in routing operations as they specifically identify where the device is connected to the internet. Routing के लिए ये यूज होते हैं. राउटिंग मींस डिफरेंट रूट्स अप्लाई करना, या यूं कह लें कि डिफरेंट जगहों से ट्रेस करते हुए कहीं तक पहुंचना. तो उसमें हेल्पफुल होते हैं ताकि, क्योंकि इनके थ्रू ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस किस पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क का पार्ट हैं और वो किस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. अगर इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज बात की जाए, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन की बात की जाए, तो मैक एड्रेस यूजेस 48 बिट्स, वेयर एज आईपी एड्रेस जो है इट यूजेस ईदर 32 बिट्स. अगर आईपी वर्जन 4 होता है तो इट यूजेस 32 बिट्स, और आईपी वर्जन 6 होता है तो इट यूजेस 128 बिट्स. टाइप्स के नाम नीचे लिख दिए कि मैक एड्रेसेस की टाइप्स होती हैं यूएए, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस, वेयर एज दूसरी टाइप का नाम है एलएए, लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस. ठीक है. और आईपी एड्रेस की अगर टाइप्स की बात करें तो ये स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेसेस भी होते हैं. अच्छा, अब मुझे आपको लेके चलना है टुवर्ड्स IPv4 एंड IPv6 के डिफरेंसेस. तो अब मैं आपसे एक और अलग एक फाइल शेयर करूंगा, और कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके. एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क अप टिल नाउ वो आप पूछ लें. सर स्टैटिक आईपी एड्रेस को वापस से एक्सप्लेन कर देंगे? जी हुमैरा, स्टैटिक आईपी एड्रेस मींस, जी स्टैटिक आईपी एड्रेस इज दैट टाइप ऑफ आईपी एड्रेस विच इज नॉट चेंजेबल, विच इज फिक्स. बिकॉज हमने आईपी एड्रेस की बेसिक डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि वेन एवर वी कीप ऑन कनेक्टिंग आर डिवाइस विद डिफरेंट internet or Wi-Fi, every time we get connected with a different Wi-Fi, a new IP address is assigned to our device. हमारी डिवाइस को एक नया IP एड्रेस असाइन होता है, and in this case we call it as dynamic IP. But even though if we are continue to connect our device with different separate internet connections Wi-Fi, but the IP assigned to our device, if it is fixed, if it is not changing, so it means ये static IP हमारी हमें दिया जा रहा है, और हमने स्टैटिक आईपी खरीदा हुआ है अपने आईएसपी से. दैट इज वाई हमारी डिवाइस को हर दफ़ा स्टैटिक आईपी ही मिल रहा है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जो मुझे आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करना था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अब. जी बेटा, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द, लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन IPv4 एंड IPv6 में डिफरेंस है क्या, वो देख लेते हैं. अगर इनकी फुल फॉर्म्स की बात की जाए तो IPv4 मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 इज बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6. ठीक है. अगर इनके एड्रेसेस की लेंथ की बात की जाए तो IPv4 ऑक्यूपाइज 32 बिट्स एंड IPv6 ऑक्यूपाइज 128 बिट्स. इनका एड्रेस का फॉर्मेट कैसा होता है ये भी हमें पहचान और आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, हमें फैमिलराइज होना चाहिए कि ये न्यूमेरिक्स यानी डिजिट्स में होता है, और इनके बीच में डिवाइडेड बाय डॉट्स मींस दे आर सेपरेटेड बाय डॉट्स. इनके बीच में डॉट लगे हुए होते हैं, लाइक 192.168.1.1. तो आईपी एड्रेस IPv4 always look like this, whereas IPv6 always look like in a format जिसमें हमें नजर आते हैं हेक्साडेसिमल्स और डिवाइडेड बाय कोलन्स, और उनके बीच में कोलन्स होते हैं. हेक्साडेसिमल मींस कि उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं A till F. ठीक है. और उनके बीच में डॉट नहीं होगा IPv6 में, बल्कि कोलन लगे हुए होंगे जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. पर्पस क्या है दोनों का,
IPv4 की अगर हम बात करें, इट वाज डिजाइन फॉर अर्लियर इंटरनेट यूजेज। शुरू में ये डिजाइन हुआ था, ये पुराना वर्जन है या अर्लियर वर्जन है। वेयर एज IPv6 वाज डिजाइन फॉर मॉडर्न इंटरनेट नीड्स, की बहुत सारी चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर IPv6 की, और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है और इसकी लिमिट भी ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ एड्रेसेस जो हैं वो मैं मिस कर गया, और उसी की वजह से देखें साइज़ का भी फ़र्क है। कितने एड्रेसेस होल्ड कर सकता है IPv4, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4.3 बिलियन। वेयर एज IPv वेयर एज IPv6 की अगर हम बात करें, तो IPv6 जो है, कि नहीं दिख रही IPv6 प्रेजेंटेशन। की अगर हम बात करें तो वो सर सेफर कौन सा होता है ज़्यादा, IPv6 या IPv4? दोनों यूज़ होते हैं बेटा, डिपेंड करता है कि किस तरह का यूजेज है आपका। बाज़ दफ़ा डिफरेंट चीज़ों में दोनों भी साथ साथ यूज़ हो रहे होते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, वहाँ पर ये चीज़ फिर कीपिंग इन कंसिडरेशन ली जा रही होती है। फिर भी सर मतलब सेफ कौन सा ज़्यादा होता है यूज़ के लिए? नहीं, सेफ तो दोनों ही हैं। यूँ समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं यूँ समझाऊँ, कैपेसिटी का भी इशू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में जब मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस आए, और उस वक़्त जो नंबर लोगों को असाइन किए जा रहे थे, वो 7 डिजिट थे, और उसमें उससे पहले 0, 3, 4, 5, 0, 300, लेकिन टाइम आएगा जब ये लिमिट रीच कर जाएगी, और फिर या तो कोड चेंज करना पड़ेगा, उसमें 1 डिजिट का इंक्रीज़ लाना पड़ेगा, या नंबर ऑफ डिजिट्स में। तो इसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, IPv4 की जो कैपेसिटी है हमने लिखा वर्चुअली अनलिमिटेड, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो IPv4 क्योंकि इनिशियल वर्जन था, तो इट वाज बिट लेस सिक्योर, जबकि IPv6 जो है ये लेटेस्ट वर्जन है, और ये इसमें बिल्ट इन इंक्रिप्शन भी है, इसमें ऑथेंटिकेशन मेथड्स भी हैं, सब कुछ है। सही है। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो ये राउटिंग और हैंडलिंग ऑफ डेटा के लिए लेस एफिशिएंट कंसीडर होता है IPv4, और IPv6 ज़्यादा एफिशिएंट कंसीडर होता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो। हेडर साइज और यूज़ ऑफ नेट, ये सब आपका जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड आपके स्कोप में नहीं है, यानी ये अभी आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ नहीं है। ये हो गया हमारा, ये सब मैं आपसे शेयर कर दूंगा आपके क्या कहते हैं GCR पर। अब मैं आपसे ज़रा डायनेमिक और स्टैटिक IP का भी कंपैरिजन थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो देख लेते हैं पहले। लेट मी शेयर दिस एज वेल। जी बेटा, अब ज़रा डायनेमिक और स्टैटिक IP की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा कब और कैसे असाइन किया जा रहा होता है? डायनेमिक IP ऑटोमेटिकली असाइंड बाय द नेटवर्क, यानी हमारा राउटर जो होता है, हम घर के राउटर से कनेक्ट होंगे तो हमारा एक अलग IP, डायनेमिक IP हमें दिया जाएगा फ्रॉम दिस राउटर। हम स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट वहाँ के राउटर से कनेक्ट होंगे, तो वहाँ का राउटर हमारी डिवाइस को, चाहे वो मोबाइल है, PC है, लैपटॉप है, एक अलग डायनामिक IP दे रहा होगा। ठीक है। ये जो जबकि स्टैटिक IP है, ये मैनुअली असाइंड किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप किसी लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, एक बैंक वालों ने, एक हॉस्पिटल वालों ने, एक एयरपोर्ट वालों ने, एक स्कूल वालों ने, तो उस नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर आपको दे सकता है। या आप अगर होम यूज़र हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर आप अपने ISPs को अप्रोच करके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अप्रोच करके उससे डिमांड कर सकते हैं। और गेमिंग वगैरह में भी कुछ लोग चाह रहे होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा, जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं उस पर भी इसका इफेक्ट होता है, उस पर भी थोड़ा सा बात की जा सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर चेंज की बात कर लें, चेंजेस ईच टाइम, कौन सा इसमें से चेंज होता है कौन सा नहीं होता, डेफिनेटली जब डायनेमिक उसको कह रहे हैं, इसीलिए उसका नाम डायनेमिक है, बिकॉज इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट स्टेशनरी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग ईच टाइम वेन एवर यू गेट कनेक्टेड विद एनी न्यू राउटर। ठीक है। वेर एज स्टैटिक IP चेंज नहीं होता। अगर बात करें कॉस्ट की, तो मैंने आपको ये बात भी अभी बताई थी कि डायनामिक IP तो हमें फ्री ही मिल रहा होता है ISP की मदद से, लेकिन स्टैटिक IP ऑन डिमांड आप ले सकते हैं, ऑन रिक्वेस्ट आप ले सकते हैं, विद सम एक्स्ट्रा चार्जेस आप मंथली बेसिस पर अपने ISP को उसके लिए दे रहे होंगे। और ये जो बात आ गई
कि इसमें से आईपी, डायनेमिक आईपी जो है नॉर्मली किस तरह के सिनेरियो में इसका यूजेज जो है किस तरह के सिनेरियो में किया जा रहा होता है, हमारे घर के इस्तेमाल में या कैजुअल यानी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जो नॉर्मल हमारे ऑपरेशंस होते हैं रिलेटेड टू इंटरनेट, उसके लिए डायनेमिक आईपी। और कोई स्पेसिफिक कोई है सर्वर ऐसा, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड है, गेमिंग रिलेटेड है, नेटवर्किंग रिलेटेड है, वेदर फोरकास्टिंग है, आपका एयरपोर्ट ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग है, कोई ऐसे स्पेशल सिनेरियो में वहाँ पर फिर जो है हमें स्टैटिक आईपी उस सिनेरियो में यूज़ किए जाने की ज़रूरत पेश आ रही होती है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आसान है डायनेमिक आईपी की, जबकि ऑटोमेटिकली हो रही होती है। हम में से कोई भी अपने किसी भी मोबाइल, टैब या पीसी या लैपटॉप में जाकर इसकी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता। डायनेमिक आईपी की ऑटोमेटिकली हो रही होती है, जबकि उसकी में स्टैटिक वाले में मैनुअल सेटअप रिक्वायर्ड होता है। सही है। और इसके अलावा जो आपसे रिलेटेड है, सेकंड थर्ड लास्ट भी हम क्या पढ़ सकते हैं कि लेस रिलायबल फॉर होस्टिंग सर्विसेज। होस्टिंग सर्विसेज मींस जो हम वेबसाइट या वेब पेजेस को डेवलप करते हैं तो उनकी जो होस्टिंग करवाते हैं, ये उसकी बात है। ऑल्दो आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा डीप नहीं है। आइडियल फॉर होस्टिंग सर्विसेज हो गया हमारा स्टैटिक आईपी। और ये हो गया यहाँ पे। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो अपने पॉइंटर्स में आपने जहाँ तक लिखा था, उन पॉइंटर्स में बेटा बस आप और ऐड कर लो। लास्ट चीज़ हमने उसमें लिखी थी IPv4 वर्सेस IPv6। एक पॉइंटर और लिख लें यहाँ पे, डायनेमिक आईपी वर्सेस स्टैटिक आईपी। ये भी हमने देख लिया, ये भी आप वहाँ लिख लेंगे। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो ये एक टॉपिक रह गया है जो मैं फिज़िकल में आपको करवाना चाहता हूँ। मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ऑल्दो ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये ऐसा है कि मैं इसको फिज़िकली क्लास प्रोजेक्टर पर या बोर्ड पे ड्रॉ करके आपको समझाना चाहूँगा कि डायनेमिक आईपी के क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है। डीएनएस से इसका इन्वॉल्वमेंट और डिवाइस और डीएचसीपी सर्वर, इन सारों के केस में, और स्टैटिक आईपी में किस तरह से ये नंबर ऑफ स्टेप्स किस में कम हो जाते हैं, किस में ज़्यादा हो जाते हैं, किस सीक्वेंस में होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह फिजिकल वाले में। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज उन्होंने यहाँ पे बुक में भी बताई हुई हैं स्टैटिक आईपी की और डायनेमिक आईपी की। स्टैटिक आईपी एड्रेसेस कैन बी ईदर स्टैटिक, स्टैटिक मींस ब्रैकेट में लिखा डोंट चेंज, जो फिक्स रहते हैं, और डायनेमिक चेंज एवरी टाइम अ डिवाइस कनेक्ट्स टू द इंटरनेट। ठीक है। फिर स्टैटिक आईपी की प्रॉपर्टीज में लिखा रिमोट सर्वर्स विच आर होस्टिंग अ वेबसाइट, वेब होस्टिंग का जिक्र उस डॉक्यूमेंट की फीचर्स में भी आया था प्रॉपर्टीज में। ठीक है। एन ऑनलाइन डेटाबेस हो, एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर हो जिसके थ्रू डिफरेंट कंपनीज अपने यूजर्स के साथ सर्टेन फाइल्स या मूवीज़ या सॉन्ग्स वगैरह शेयर करती हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसको कहते हैं। जो आमतौर पर लोकल इंटरनेट कंपनीज होती हैं, प्रोवाइडर्स, वो अपने कस्टमर्स के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP सर्वर बनाती हैं, उस पर सर्टेन मूवीज़, सॉफ्टवेयर्स, गेम्स के सेटअप वगैरह रख देते हैं। डायनेमिक आईपी जो है उसके लिए अगर बात की जाए तो उसमें ग्रेटर प्राइवेसी सिंस दे चेंज वाला फैक्टर भी हो सकता है। एक मिनट रुकें, कौन है जो क्लास खत्म होने के टाइम पे आए हैं, मैं ज़रा देख लूँ। अच्छा, अरमान। अरमान थे, मुझे अरमान की फेक आईडी लग रही थी। एनीवेज, तो कहाँ पे थे हम बोला। हम्म। तो अब हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर राउटर्स का सिर्फ टॉपिक रह गया है, वो तो एक छोटा सा टॉपिक है। और इसके अलावा हमारा जो टॉपिक रह गया है वो ये DHCP वाला रह गया है। ठीक है। तो फिर हमारा ये 3.4 भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी मंडे को होगी अब फिजिकल वाली, उसमें ये जो सारा आज पढ़ा हमने इसका एक रिकैप करके और राउटर्स और DHCP वाला पढ़ के देन वी विल फिनिश एंड क्लोज दिस टॉपिक। ठीक है। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस बेटा स्टार्ट आस्किंग। रिकॉर्डिंग ऑन है तो इसलिए कोई ऐसी गलत बात नहीं बोलिएगा कि वो फिर बाद में आप ही के अगेंस्ट एक एविडेंस रेस कर हो जाए। तो पूछें जो कुछ पूछना है अपने टॉपिक से रिलेटेड।
सर आप रिवीजन कराएंगे? जी जी बेटा, जो जो कुछ ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं इसको एक क्विक रिकैप कर लेंगे, या चलो एक पीरियड भी हम अपने नेक्स्ट मंडे वाले क्लास में एक पूरा पीरियड इसके लिए कंज्यूम कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन में पढ़ा उसको मंडे को एक फर्स्ट लेसन में इंशाल्लाह पूरा रिवाइज करके फिर बचे हुए 2 टॉपिक और हम दूसरा जो है हमारा DHCP वाला वो करके फिर ये टॉपिक हमारा इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा और फिर बाकी सारा टाइम हमारा रिवीजन के लिए इंशाल्लाह बचेगा। अगर करना ही ना हो सर? तो सर मैं चला जाऊँ अब? जी जी बेटा, यू कैन स्टार्ट लीविंग नहीं, बैठे क्योंकि रहो दिस बैठे इज रहो। द एंड ऑफ दिस। थैंक यू बेटा, यू कैन लीव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।